ایک زمانہ تھا اسپین کے ایک خشک سے گاؤں میں ایک شریف مگر خوابوں میں گم آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام الونسو کیخانو تھا۔ عمر ڈھل چکی تھی مگر دل میں ایک عجیب سی آگ تھی۔ وہ رات رات بھر شوالیوں کے قصے پڑھتا، ایسے بہادر جو کمزوروں کی مدد کرتے، ظالموں سے لڑتے اور محبت کی خاطر دنیا پلٹ دیتے۔ دن گزرتے گئے، قصے اس کے سر میں چڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی شوالیہ بنوں گا۔ مگر شوالیہ بننے کے لیے اسے 3 چیزیں چاہیے: ایک نام، ایک گھوڑا اور ایک محبوبہ جس کے نام پر وہ کارنامے کرے۔ اس نے اپنے لیے نام چنا ڈان کیخوٹے۔ اپنے کمزور ہڈیوں جیسے گھوڑے کو دیکھ کر بولا، تو عام گھوڑا نہیں، تو میرا وفادار ساتھی ہے، اور اسے نام دیا روسینانتے۔ اور پھر اس نے ایک کسان لڑکی جسے وہ دور سے جانتا تھا کو اپنے تخیل میں شہزادی بنا دیا۔ اس کے لیے نام تراشا دولسینیا۔ اب وہ اپنے خیالوں میں عاشق بھی تھا، شوالیہ بھی اور فاتح بھی۔ اس نے زنگ آلود ذرا بختر نکالی، ٹوٹی پھوٹی خود سنبھالی اور ہاتھ میں نیزہ لیا۔ گاؤں والوں نے دیکھا تو ہنسے، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ایسی چمک جو کبھی کبھی عقل سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ صبح سویرے نکلا، دھوپ تیز، زمین خشک اور ہوا میں گرد۔ چند میل چلا تو ایک سرائے دکھائی دی، عام سی سرائے، مگر ڈان کیخوٹے کو وہ قلعہ نظر آئی۔ یہ ضرور کسی بادشاہ کا محل ہے، وہ جوش سے بولا۔ وہ اندر گیا، سرائے والے نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا، ایک دبلے پتلے آدمی کو جو خود کو شوالیہ سمجھ رہا تھا۔ ڈان کیخوٹے نے نہایت سنجیدگی سے کہا، مجھے شوالیہ بننے کی رسم ادا کراؤ۔ سرائے والا ہنسا، مگر دل میں سوچا، اگر اسے خوش رکھوں تو فساد کم ہوگا۔ یوں رات کے وقت ایک مضحکہ خیز مگر یادگار رسم ہوئی۔ ڈان کیخوٹے کو استبل کے پاس کھڑا کیا گیا، جیسے وہ کسی مقدس ہتھیار کی نگرانی کر رہا ہو۔ 2 شرارتی آدمی آئے، اس کے ہتھیار چھیڑنے لگے۔ ڈان کیخوٹے بھڑک اٹھا، نیزہ گھمایا، شور ہوا، لوگ جمع ہوئے، اور سرائے والا گھبرا کر بولا، بس بس، تم شوالیہ بن گئے۔ ڈان کیخوٹے کی آنکھوں میں فخر بھر گیا۔ وہ سمجھا جیسے دنیا نے اسے مان لیا ہو۔ صبح ہوتے ہی ڈان کیخوٹے نے خود کو گویا نئی زندگی میں محسوس کیا۔ اب وہ شوالیہ تھا، اور اس کے نزدیک ہر راستہ ایک مہم اور ہر آواز کسی مظلوم کی پکار تھی۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک دل ہلا دینے والا منظر دکھائی دیا۔ ایک کسان ایک کم عمر لڑکے کو ڈانٹ رہا تھا اور اسے سختی سے پکڑ کر مار رہا تھا۔ ڈان کیخوٹے گرجا، رک جاؤ، کمزور پر ہاتھ اٹھانا بہادری نہیں۔ کسان گھبرا گیا، فوراً لہجہ بدل کر کہنے لگا، حضور، میں تو اسے حق دینے ہی والا تھا، بس ذرا سمجھا رہا تھا۔ ڈان کیخوٹے نے حکم دیا، اسے اس کا حق دو اور آئندہ ظلم نہ کرنا۔ لڑکی کی آنکھوں میں امید جاگی۔ ڈان کیخوٹے نے فخر سے سانس لی اور آگے بڑھ گیا، جیسے واقعی دنیا بدل گئی ہو۔ مگر ڈان کیخوٹے کو خبر نہ تھی کہ وہ وعدہ محض ڈر کی زبان میں کیا گیا تھا۔ وہ ابھی چند ہی قدم دور گیا تھا کہ پیچھے وہی سخت آوازیں پھر اٹھنے لگیں، مگر ڈان کیخوٹے کے کانوں تک اب صرف اپنی فتح کی گونج پہنچ رہی تھی۔ آگے چل کر اسے چند مسافر دکھائی دیے۔ وہ عام لوگ تھے، سفر کی تھکن چہروں پر اور راستے کی گرد کپڑوں پر، لیکن ڈان کیخوٹے کی آنکھوں میں وہ عام لوگ نہیں تھے۔ اسے لگا یہ ایسے بد زبان ہیں جو سچائی اور حسن کی قدر نہیں کریں گے۔ اس نے روسینانٹے کو آہستہ کیا اور نہایت شان سے آواز بلند کی، اے مسافروں، میری محبوبہ ڈولسینیا کی خوبصورتی کی گواہی دو۔ مسافروں نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر کچھ کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ ایک نے مذاق میں کہا، ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے نے جھنجھلا کر کہا، بھائی ہمیں اپنا راستہ لینے دو۔ ڈان کیخوٹے کے لیے یہ ہنسی توہین تھی۔ اس کے اندر کا شوالیہ جاگ اٹھا، تم گستاخ ہو، تمہیں ادب سکھانا میرا فرض ہے۔ وہ نیزہ سیدھا کر کے آگے بڑھا، مگر روسینانٹے کمزور تھا اور زمین ناہموار۔ اچانک گھوڑا لڑکھڑایا، نیزہ بے قابو ہوا اور ڈان کیخوٹے خود بھی سنبھل نہ سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ دھول میں گرا پڑا تھا، جیسے ایک اونچا خواب پتھر سے ٹکرا کر بکھر گیا ہو۔
मुसाफिर पहले घबरा गए, फिर कुछ ने सर झटका और आगे बढ़ गए। डॉन के खोटे जमीन पर पड़ा कराहता रहा, मगर जबान से फिर भी शिकस्त का लफ्ज न निकला। वो आहिस्ता से बोला, ये जरूर किसी दुश्मन की साजिश है, वरना मैं कभी यूं न गिरता। कुछ देर बाद उधर से एक गांव वाला गुजरा। उसने करीब आकर देखा तो चौंक गया। अरे, ये तो हमारा अलोंसो। वो उसे सहारा देकर घर की तरफ ले चला। गांव में खबर फैल गई। लोग दरवाजों पर आ खड़े हुए, कोई अफसोस करता, कोई हंसी दबाता। पादरी और हज्जाम ने उसे देखकर एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों कि ये मामला अब मजाक नहीं रहा। और उसी रात घर के अंदर एक खामोश सा फैसला होने लगा, क्योंकि अगर डॉन के खोटे को ना रोका गया तो ये सफर बार बार खून, धूल और फरेब में लिखा जाएगा। पादरी और हज्जाम ने दिल ही दिल में तय कर लिया कि अब इस जुनून का इलाज जरूरी है। उन्होंने कहा, ये किस्से इसकी अक्ल पर छा गए हैं। चुनाचे एक रात जब घर वाले सो गए, वो डॉन की खोटे के कमरे में गए। वहां किताबों के ढेर थे, शिवालियों के किस्से, जंगों के अफसाने और ऐसी मोहब्बतों के बयान जो अक्ल को ख्वाब बना देती हैं। पादरी ने एक किताब उठाई, चंद सफ़े पलटे और आह भरी। हज्जाम ने हंसते हुए कहा, यही तो सारी मुसीबत है। कुछ किताबें उन्होंने नुकसानदेह कहकर अलग कर दी, कुछ पर रहम किया और कई को घर से बाहर निकाल दिया गया। सुबह जब डॉन की खोटे ने पूछा, मेरी किताबें कहाँ हैं? घर वालों ने हिचकिचाते हुए कहा, उन्हें एक जादूगर ले गया है। डॉन की खोटे की आंखें चमक उठीं। मैं जानता था, दुश्मन जादूगर मेरा पीछा कर रहा है। और यूं इलाज की कोशिश भी उसके तखय्युल में एक और दास्तान बन गई। कुछ दिन वो खामोश रहा। लोग समझे कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, मगर खामोशी के नीचे एक और सफर तैयार हो रहा था। डॉन की खोटे ने दिल में सोचा, इस बार मैं अकेला नहीं निकलूंगा। एक शिवालिये के साथ एक वफादार खिदमतगार भी होना चाहिए। उसी गांव में उसका पड़ोसी सांचो पांजा रहता था। सादा दिल, हंसी मजाक वाला, मगर दुनिया के हिसाब में तेज। डॉन की खोटे ने उसे बड़े यकीन से कहा, सांचो, मेरे साथ चल, मैं तुझे जजीरे का गवर्नर बना दूंगा। सांचो पहले तो हंसा, फिर ठिठक्का। गवर्नर? वाकई? उसके जहन में फौरन नर्म नर्म बिस्तर, ढेर सारा खाना और लोगों के सलाम घूम गए। मगर फिर उसने डॉन की खोटे के टूटे नेज़े और जख्मों को याद किया। दिल ने कहा, ये सौदा महंगा ना पड़ जाए। और लालच ने कहा, मगर अगर सच हो गया तो? सांचो ने एहतियात से पूछा, हुजूर, ये जजीरा कहाँ है? डॉन की खोटे ने शान से कहा, जहां किस्मत ले जाए, शिवालिया के लिए रास्ता खुद बनता है। सांचो ने दिल में कहा, और गवर्नर के लिए रोटी? मगर जुबान बंद रखी। आखिरकार उसने हामी भर ली। अगली ही रात दोनों चुपके से निकले। रुसिनानते आगे था, कमजोर सही मगर अपने मालिक के ख्वाब का बोझ उठाए हुए। सांचो का गधा पीछे था, आहिस्ता, मुतमईन और अपने मालिक के साथ ज्यादा समझदार। रास्ता लंबा था मगर बातें उससे भी लंबी। डॉन की खोटे आजमत के किस्से सुनाता और सांचो बीच बीच में अपने जजीरे का हिसाब लगाता। कभी वो पूछता, हुजूर, गवर्नर को क्या पहनना होता है? और डॉन की खोटे जवाब देता, इज्जत का लिबास। सांचो आहिस्ता से कहता, और कुछ सोने चांदी का भी। सुबह की रोशनी फैली तो दूर मैदान में कुछ बड़े बड़े साए नजर आए। हवा तेज थी और साए जैसे बाजू फैलाए खड़े थे। डॉन की खोटे रुक गया, सांस गहरी हुई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सांचो, लगता है हमारी पहली बड़ी जंग सामने है। सांचो ने आंखें मली, फिर गौर से देखा और उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, हुजूर, ये तो। मगर डॉन की खोटे की आवाज जोश में बुलंद हो चुकी थी। देखो, देव, बड़े बड़े देव। सांचो ने घबरा कर कहा, हुजूर, देव नहीं, ये हवा के चक्के हैं। मगर डॉन की खोटे के कानों में अब नसीहत नहीं, सिर्फ जंग का नक्कारा बज रहा था। उसने नेजा मजबूत पकड़ा और ललकारा, दुल्सनिया के नाम पर आज इन देवों का गुरूर तोड़ दूंगा। रोसिनानते ने जैसे तैसे दौड़ लगाई। हवा तेज थी, चक्कों के पंखे गरजते हुए घूम रहे थे। सांचो पीछे से चीखा, हुजूर, रुक जाएं, ये लकड़ी है, जान नहीं। मगर डॉन की खोटे आगे बढ़ चुका था और ख्वाबों के घोड़े की लगाम किसी के हाथ में नहीं होती। अगले ही लम्हे चक्के का एक बड़ा बाजू घूमा, नेजा उससे टकराया, टूटकर दो हिस्सों में बट गया और डॉन की खोटे हवा में ऐसे घूमा जैसे किसी ने उसे आसमान पर फेंक दिया हो।
वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, मिट्टी उड़ी, सांस रुकी और रोसिनांते भी बेबस होकर एक तरफ हाँफने लगा। सांचो दौड़ता हुआ आया। हुजूर, मैंने कहा था। डॉन कीखोटे दर्द से कराहते हुए भी अपनी शिकस्त को मानने पर तैयार ना था। वो बोला, ये दुश्मन जादूगर की साजिश है। उसने देव को चक्के में बदल दिया ताकि मेरी फतह छीन ले। सांचो ने दिल में सोचा, अगर जादूगर इतना ताकतवर है तो गवर्नरी किसके हाथ आएगी। कुछ देर वहीं बैठकर सांचो ने अपने मालिक के जख्म साफ किए, मट्टी झाड़ी और टूटे हुए नेज़े के टुकड़े इकट्ठे किए। डॉन कीखोटे ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शवालिये के लिए दर्द भी एजाज है। सांचो ने आहिस्ता से जवाब दिया, और मरहम भी जरूरी है। फिर दोनों दोबारा चल पड़े। रास्ता वही था, मगर डॉन कीखोटे के अंदर की आग और तेज हो चुकी थी। वो बोला, सांचो, ये तो सिर्फ आगाज है, असल दुश्मन अभी बाकी है। सांचो ने दिल ही दिल में कहा, असल दुश्मन शायद रास्ता है, मगर जबान पर सिर्फ जी हुजूर आया। कुछ दूर जाकर उन्हें एक सराय नजर आई। सांचो की आंखों में वो सराय थी, छत, पानी और गर्म खाना। मगर डॉन कीखोटे के लिए वो फिर एक किला थी, और किलों में उसके ख्याल के मुताबिक रस्में होती हैं। वो अंदर दाखिल हुआ तो सराय वालों ने पहले हैरत से देखा, फिर दबी दबी हंसी भी आई। डॉन कीखोटे ने अपनी टूटी हालत के बावजूद ऐसा अंदाज अपनाया जैसे वो किसी बादशाह के दरबार में आया हो। उसने कहा, ए किले के निगहबान, हमारे लिए खाने और आराम का इंतजाम करो। सांचो ने फौरन अपना नर्म लहजा निकाला और सराय वाले से कहा, भाई बस रोटी और एक कोना दे दो, हमारा सफर लंबा है। सराय वाला मुस्कुराया, रोटी भी मिलेगी, कोना भी, बस फसाद न करना। डॉन कीखोटे की निगाहें इधर उधर दौड़ रही थीं, जैसे वो किसी किले की पहरेदारी देख रहा हो। इसी दौरान उसकी नज़र बाहर एक आदमी पर पड़ी, जो बारिश से बचने के लिए सर पर पीतल की सी चीज रखे खड़ा था। सांचो ने एक नज़र में पहचान लिया, ये तो नाई की टोपी है। मगर डॉन कीखोटे के लिए वो टोपी नहीं, वो एक अजीम खुद था, सोने जैसा चमकता, जैसे किसी अफसानवी फातेह की निशानी। डॉन कीखोटे के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे उसे खजाना मिल गया हो। उसने धीरे से कहा, सांचो, तकदीर हमारे लिए एक नया खजाना ले आई है। सांचो ने घबरा कर कहा, हुजूर, खजाना नहीं, छोड़ दें। मगर डॉन कीखोटे को किसने रोका था? वो बाहर निकला, रोसिनांते को एड़ लगाई और उस आदमी की तरफ बढ़ा। नाई ने उसे आता देखा तो डर गया। वो चीखा, अरे भाई, ये तो मेरी टोपी है। डॉन कीखोटे ने ललकार कर कहा, ये टोपी नहीं, शिवालिये का खुद है। नाई ने भागने की कोशिश की, मगर डॉन कीखोटे ने वो पीतल की टोपी छीन ली। उसे हाथ में उठाकर ऐसे देखा जैसे किसी मुकद्दस चीज को देख रहा हो। सांचो ने टोपी को गौर से देखा और दिल में कहा, ये खुद कम देगची ज्यादा लग रही है। मगर वो चुप रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि अब कुछ कहने का फायदा नहीं। डॉन कीखोटे ने वो खुद अपने सर पर रखा, मगर वो न ठीक बैठा न ठीक लग रहा था। फिर भी वो फख्र से अकड़ा हुआ बोला, अब मेरा रौब बढ़ गया है। सांचो ने आहिस्ता से कहा, जी, रौब तो बढ़ गया है। सराय वाले ये सब देखकर हंसी दबाए रह गए, और डॉन कीखोटे अपनी नई फतह के साथ समझ रहा था कि किस्मत उसके लिए बड़े कारनामे लिख रही है। मगर किस्मत ने अगला मंजर पहले ही तैयार रखा था। ऐसा मंजर जहां डॉन कीखोटे को फिर मजलूम नजर आएगा और सांचो को फिर मुसीबत की बू आएगी। अगली सुबह वो सराय से निकले। डॉन कीखोटे के सर पर वही पीतल का खौद था और दिल में वही बुलंद दावे। सांचो ने रास्ते में आहिस्ता से कहा, हजूर, अगर ये खौद गिर गया तो? डॉन कीखोटे ने गर्दन अकड़ा कर जवाब दिया, शिवालिये का खौद नहीं गिरता, दुश्मन गिरता है। चलते चलते उन्हें कुछ सवार और सिपाही दिखाई दिए। बीच में चंद आदमी जंजीरों में जकड़े हुए थे। सांचो के कदम रुक गए। हजूर, ये लोग ठीक नहीं लगते। मगर डॉन कीखोटे की आंखों में मंजर बिल्कुल साफ था, मजलूम कैदी और जालिम मुहाफिज। उसने बुलंद आवाज में कहा, ए जालिमों, इन बेबसों को छोड़ दो। सिपाहियों ने हैरानी से उसे देखा, फिर सख्त लहजे में बोले, ये कैदी हैं, मुजरिम हैं, इन्हें सजा के लिए ले जा रहे हैं। सांचो ने सरगोशी की, हजूर, चलिए अपना रास्ता लेते हैं। मगर डॉन कीखोटे ने कैदियों की तरफ देखा और कहा, तुम्हें किस जुर्म में बांधा गया है? कैदियों ने एक एक करके जवाब दिए। किसी ने कहा, बस थोड़ी सी गलती हो गई थी। किसी ने कहा, किस्मत ने साथ नहीं दिया। किसी ने हंसते हुए कहा, हजूर, दुनिया ही जालिम है।
डॉन कीखोटे के दिल में रहम और जोश एक साथ भड़क उठे। डॉन कीखोटे ने सीना तान कर कहा, आज़ादी खुदा की नेमत है, कोई इंसान उसे जंजीर नहीं बना सकता। सांचो ने घबरा कर कहा, हुजूर बात अच्छी है, मगर ये लोग वाकई। मगर डॉन कीखोटे ने बात काट दी। उसकी आवाज में हुक्म था, ए मुहाफिजो, इन्हें फौरन छोड़ दो, वरना तुम्हारा सामना मेरे नेज़े से होगा। सिपाहियों ने पहले हंसी दबाई, फिर एक ने सख्ती से कहा, ये सरकारी कैदी हैं, तुम कौन होते हो मुदाखलत करने वाले? डॉन कीखोटे ने रोसिनांते को एड़ लगाई और लपका। अचानक शोर उठा, जंजीरें खनकी और गर्द उड़ी। सांचो पीछे से चीखा, हुजूर ये मुसीबत है। मगर अब देर हो चुकी थी। डॉन कीखोटे ने एक मुहाफिज को धक्का दिया, दूसरे के हाथ से लगाम खिसकी और चंद लम्हों में सफ बिगड़ गई। कैदियों की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गए कि ये उनके लिए मौका है। किसी ने जंजीर खींची, किसी ने पत्थर उठाया और फिर हंगामा फैल गया। आखिरकार जंजीरें ढीली पड़ी और कैदी आजाद होने लगे। सांचो ने बेइख्तियार कहा, हुजूर आपने वाकई कर दिखाया। डॉन कीखोटे ने फख्र से सांस ली, जैसे आज उसने दुनिया के तख्त पर नेकी का परचम गाड़ दिया हो। उसने आजाद कैदियों को करीब बुलाकर कहा, अब तुम सब मेरी महबूबा दुल्सेनिया के पास जाओ और उसे बताओ कि डॉन कीखोटे ने तुम्हें आजादी दिलाई है। कैदी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के होठों पर मुस्कुराहट आई, किसी की आंखों में शरारत। सांचो के दिल में एक अजीब सा खदशा उतरने लगा, क्योंकि वो जानता था हर आजाद होने वाला आदमी शुक्रगुजार नहीं होता। डॉन कीखोटे ने समझा था कि कैदी खुशी से सर झुकाएंगे, दुआ देंगे और दुल्सिनिया के नाम पर उसके गीत गाएंगे। मगर कैदियों की मुस्कुराहटें कुछ और कहानी सुना रही थीं। एक ने हंसते हुए कहा, हुजूर हम दुल्सिनिया के पास जाएं, मगर पहले ये बताएं हम आपके हुक्म के गुलाम क्यों बने? डॉन कीखोटे का चेहरा संजीदा हो गया। ये हुक्म नहीं, शुक्रगुजारी है। दूसरा बोला, हम शुक्रगुजारी कर भी दें, मगर रास्ता कौन दिखाएगा? और तीसरे ने आंख मारकर कहा, या यूं करें, जो कुछ तुम्हारे पास है वही हमें दे दो, ताकि सफर आसान हो जाए। सांचो के पेट में जैसे डूबता हुआ पत्थर पड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, हुजूर मैंने कहा था ना। मगर डॉन कीखोटे ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया, तुम नाशुक्रे हो, मैंने तुम्हें आजादी दिलाई और तुम बदले में। कैदियों ने जवाब में दलीलें नहीं दी, उन्होंने हाथ बढ़ा दिए। किसी ने सांचो के थैले पर झपटा, किसी ने डॉन कीखोटे का सामान खींचा और चंद ही लम्हों में चीखों पुकार मच गई। सांचो ने गधे की रस्सी मजबूत पकड़ी, अरे भाई ये मेरा है। मगर गधा खौफ से हिनहिनाया, एक झटका दिया और पीछे हट गया। सांचो की चीख निकल गई, हुजूर मेरा गधा। डॉन कीखोटे ने तेजी से अपना हाथ नेज़े की तरफ बढ़ाया, मगर उसके पास ना वैसा नेज़ा रहा था, ना वैसी फुर्सत। तादाद ज्यादा थी, हाथ बेरहम थे और नीयत में शुक्रगुजारी नहीं, सिर्फ फायदा था। फिर वही हुआ जिसका सांचो को अंदेशा था। कैदियों ने दोनों को खूब धक्का दिया, लूटा और हंसते हंसते भाग निकले। एक जाते जाते पलट कर बोला, शवालिया साहब हमारी आजादी का शुक्रिया। और फिर कहकहा हुआ, जैसे किसी ने नेकी को मजाक बना दिया हो। जब गर्द बैठ गई तो डॉन कीखोटे और सांचो खाली हाथ, जख्मी और मिट्टी में लथपथ रह गए। सांचो की आवाज भर्रा गई, ये कैसा इंसाफ है? डॉन कीखोटे ने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, सांचो नेकी का रास्ता कांटों से भरा होता है। सांचो ने कड़वा सा कहकहा दबाया, कांटों से? हुजूर ये तो पूरा जंगल है। वो दोनों फिर उठे। कदम भारी थे, मगर सफर रुका नहीं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जमीन बदलने लगी। रास्ता सुनसान, हवा सर्द और पहाड़ों के साए लंबे होने लगे। सांचो ने चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, हुजूर ये जगह अच्छी नहीं लगती। डॉन कीखोटे ने भी दूर की खामोशी को देखा, मगर उसकी आवाज में फिर वही यकीन था। सांचो, जहां डर हो वहीं शवालिये का इम्तिहान होता है। वो पहाड़ी रास्तों पर चलते गए। रात गहरी होती गई और खामोशी ऐसी थी जैसे कोई सांस भी आहिस्ता ले रहा हो। अचानक दूर से एक आवाज आई, किसी के रोने की
या शायद किसी के गाने की। सांचो ने कान लगाकर सुना और सरगोशी की। हुजूर, ये आवाज? डॉन कीखोटे ने कहा, यह किसी मजलूम की पुकार है। वो इस आवाज की सिमत बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जिसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे थे और आंखों में अजीब सी वहशत थी। वो कभी हंसता, कभी रोता और कभी जमीन पर बैठकर अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लेता। सांचो ने डर के मारे गधे को पीछे किया। हुजूर, ये तो पागल लगता है। डॉन कीखोटे की आंखें चमक उठीं। सांचो, मोहब्बत और दुख इंसान को इसी हाल में ले आते हैं। ये कोई आशिक है। उस आदमी ने उन्हें देखा तो एक लम्हे को ठिठका, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर चीखा, ऐ दुनिया, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराई और वापस गूंजी। सांचो के बदन में सर्द लहर दौड़ गई। डॉन कीखोटे ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, ऐ भाई, बताओ तुम पर क्या गुजरी। वो आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर टूटी हुई आवाज में अपनी कहानी सुनाने लगा। एक धोखा, एक जुदाई और एक ऐसा जख्म जो जिस्म पर नहीं, दिल पर लगता है। सांचो सुनता रहा और दिल में सोचता रहा कि दुनिया के दुख वाकई कहानियों से भी बड़े होते हैं। डॉन कीखोटे ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे वो अपने ही किस्से में किसी और का दुख देख रहा हो। फिर डॉन कीखोटे ने अचानक कहा, सांचो, यही जगह है। सांचो चौंका। कौन सी जगह हुजूर? डॉन कीखोटे ने गहरी सांस ली और बोला, यहां मैं भी अजीम मोहब्बत के नाम पर आजमाइश करूंगा। मैं दुख सहूंगा ताकि दौलसिनिया के जादू टूटे। सांचो के मुंह से बेख्तियार निकला, हुजूर, आपको फिर क्या हो गया है? डॉन कीखोटे ने निहायत संजीदगी से कहा, ये शव्वालिये की रस्म है सांचो। अजीम मोहब्बत के लिए अजीम दुख जरूरी है। फिर उसने अचानक अपने हाथ फैलाए, जैसे वो आसमान से किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। कभी वो जोर जोर से आहें भरता, कभी खुद को कसूरवार कहकर रोता और कभी दुल्सिनेनिया के नाम पर ऐसी बातें करता जैसे वो सामने खड़ी सुन रही हो। सांचो ने सर पकड़ लिया। वो दिल में बोला, जजीरा तो दूर, यहां तो जान भी मुश्किल से बच रही है। मगर फिर उसने अपने मालिक के लिए पानी निकाला और आहिस्ता से कहा, हुजूर, कम से कम कुछ खा लें। डॉन कीखोटे ने जवाब दिया, नहीं, मैं रोजा रखूंगा, मैं दुख सहूंगा, मैं खुद को साबित करूंगा। सांचो ने मुंह ही मुंह में कहा, और मैं भी साबित हूंगा। मगर उसने आवाज बुलंद ना की। फिर डॉन कीखोटे ने सांचो की तरफ देखा और कहा, सांचो, तुम गांव वापस जाओ। दुल्सिनेनिया के पास मेरा पैगाम ले जाओ। उसे बताओ कि डॉन कीखोटे उसके लिए आजमाइश कर रहा है। सांचो परेशान हो गया। हुजूर, मैं अकेला इस जंगल में? डॉन कीखोटे ने यकीन से कहा, डर मत, शव्वालिये का खिदमतगार भी तकदीर के हिसार में होता है। सांचो ने दिल में सोचा, तकदीर का हिसार ठीक है, मगर भूख का क्या? उसी वक्त दूर कहीं से कदमों की आहट आई, फिर खामोशी। सांचो चौंका। डॉन कीखोटे ने सर उठाया, जैसे वो किसी पोशीदा दुश्मन को महसूस कर रहा हो। सांचो ने धीरे से कहा, हुजूर, कोई हमें देख रहा है। और जंगल की तारीकी में एक नई कहानी आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। थोड़ी देर में झाड़ियों के पीछे से एक शख्स नमूदार हुआ। वो थका हुआ था, कपड़े गर्दालूद थे, मगर अंदाज में अजीब सी शराफत थी। उसने दोनों को देखा और एहतियात से बोला, तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रहे हो? सांचो ने फौरन कहा, हम तो बस रास्ता भटक गए हैं। मगर डॉन कीखोटे ने सीना तान कर जवाब दिया, मैं डॉन कीखोटे हूं, जुल्म के खिलाफ शवालिया। वो शख्स चौंका, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शवानिया यहां? सांचो ने दिल में कहा, बस शुरू हो गए। फिर उस अजनबी ने खुद अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वो एक नौजवान है जिसका नाम कार्दिनियो है। वो मोहब्बत में टूटा है, दोस्त के धोखे से जख्मी है और इसी दुख ने उसे जंगलों में भटका दिया है। कार्दिनियो बोलता गया और अल्फाज के साथ उसका दुख भी बहता गया। वो कभी रुक कर सांस लेता, कभी आवाज भरा लेता
और कभी हंसी जैसी आवाज निकालकर खुद ही खामोश हो जाता, जैसे दिल का जख्म हंसी के पीछे छुपाया जा रहा हो। सांचो सुनता रहा मगर दिल में सोचता रहा, हुजूर की मुसीबतें कम थीं कि अब दूसरों के गम भी हमारे साथ चल पड़े। डॉन की खोटे की आंखों में मगर एक और ही दुनिया जाग गई। उसने निहायत संजीदगी से कहा, ए कार्दिनियो, तुम्हारा दुख सच्चा है और जहां सच जख्मी हो वहां शवालिया का फर्ज पैदा होता है। कार्दिनियो ने थकी हुई निगाह से देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम वाकई कुछ कर सकते हो? सांचो ने फौरन बात बदलने की कोशिश की। भाई, पहले कोई रास्ता बताओ, हम भी तो भटके हुए हैं। कार्दिनियो ने एक लम्हा सोचा, फिर गहरी सांस ली। रास्ता तो है, मगर इस जंगल में रास्ते कम और कहानियां ज्यादा हैं। सांचो ने ज़ेरे लब कहा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसी लम्हे दूर कहीं से कदमों की आहट आई। फिर एक नरम मगर घबराई हुई आवाज गूंजी, क्या यहाँ कोई है? तीनों एक साथ चौंक गए। हवा जैसे रुक गई हो और दरख्त जैसे कान लगाकर सुन रहे हों। दरख्तों के बीच से एक औरत नमूदार हुई, कपड़ों पर सफर की गर्द, हाथ में एक छोटा सा थैला और चेहरे पर ऐसी थकन जैसे वो कई दिनों से भाग रही हो। वो रुककर उन्हें देखने लगी, जैसे फैसला कर रही हो कि भरोसा करे या भाग जाए। डॉन कीखोटे ने नरमी से कहा, बीबी डरिए नहीं, हम मुसाफिर हैं। औरत ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम सच में मदद कर सकते हो? सांचो ने फौरन कहा, हाँ, हम सुनेंगे। कार्दिनियो खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में पहचान की झलक सी आ गई। औरत ने नजरें झुका लीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, मेरा नाम डोरोथिया है। उसकी आवाज में ऐसी टूट फूट थी जैसे हर लफ्ज के साथ दिल भी टूट रहा हो। उसने बताया कि कैसे उसे वादों के जाल में फंसाया गया, कैसे इज्जत और उम्मीद को रौंद दिया गया और कैसे वो इंसाफ की तलाश में यहाँ तक आ पहुंची। सांचो का चेहरा संजीदा हो गया। कार्देनियो के हाथ भिंच गए, जैसे उसके अंदर कोई पुराना जख्म फिर से जाग उठा हो। और डॉन कीखोटे? उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, यही तो वो घड़ी है जिसके लिए शवालिया जिंदा रहता है। फिर वो कदम आगे बढ़ा और बोला, डोरोथिया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, चाहे मुझे 1000 दुश्मनों से लड़ना पड़े। डोरोथिया ने डॉन कीखोटे की तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे यकीन आया हो कि शायद कोई उसकी बात सुनेगा। उसने धीरे से कहा, अगर तुम वाकई मदद करना चाहते हो तो मुझे एक तरकीब चाहिए। कार्देनियो ने सर झुका लिया। उसकी आवाज भारी थी, मैं इस कहानी में बहुत कुछ खो चुका हूं, मगर अगर इंसाफ का कोई रास्ता निकले तो मैं साथ हूं। सांचो ने फौरन कहा, हुजूर तो पहले ही साथ हैं और हम भी साथ हैं। फिर वही सांचो आहिस्ता से बड़बड़ाया, बस खुदा करे ये साथ हमें वापस भी ले जाए। डोरोथिया ने एक मंसूबा बताया। उसने कहा, तुम्हारा शवालिया अगर सच्चे दिल से मदद करना चाहता है तो वो मेरी फरियाद सुनकर जरूर खड़ा होगा। सांचो ने हैरत से पूछा, फरियाद? डोरोथिया ने कहा, हाँ, मैं एक मजलूम शहजादी बन जाऊंगी। सांचो ने आंखें फैला दी, शहजादी? डोरोथिया ने संजीदगी से कहा, यही जबान उसे समझ आती है। अगर उसे वापस गांव ले जाना है तो हमें उसी की दुनिया में बात करनी होगी। कार्देनियो ने भी आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे उसे भी ये चाल दुरुस्त लग रही हो। सांचो ने दिल में सोचा, आखिरकार कोई ऐसा मंसूबा जो मेरी खाल बचा सके। इसी दौरान दूर कहीं से एक और आवाज आई। ये आवाज पादरी की थी और साथ हिजाम की। वो दोनों जंगल में ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गए थे। सांचो को देखकर पादरी ने कहा, वो कहाँ है? सांचो ने जल्दी से कहा, हुजूर इधर, मगर जरा एहतियात से, वो आजकल आजमाइश के मूड में है। और फिर सबकी नजरें उस तरफ उठीं जहां डॉन कीखोटे तन्हा खड़ा था, हाथ फैले हुए, चेहरा आसमान की तरफ, जैसे वो अपनी ही कहानी के आखिरी सफ़े को आवाज दे रहा हो। पादरी ने धीरे से कहा, अब यहीं से खेल शुरू होगा। हज्जाम ने सर हिलाया, बस इसे डराया नहीं, वरना कहानी फिर उल्टी हो जाएगी। डोरोथिया ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, चेहरे पर रंज की कैफियत लाई और आहिस्ता आहिस्ता डॉन कीखोटे के करीब गई। सांचो ने दिल में कहा, या अल्लाह, शहजादी बनने की अदाकारी, अब देखते हैं क्या होता है। डोरोथिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और निहायत दर्द भरी आवाज में कहा, ए अजीम शवालिये,
मैं एक मजलूम शहजादी हूँ। मेरी रियासत पर जुल्म हो गया है। मेरी इज्जत और उम्मीद दोनों खतरे में हैं। डॉन कीखोटे ने जैसे ही ये सुना, उसका जिस्म सीधा हो गया। उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। उसने बुलंद आवाज में कहा, डरो मत बीबी, मैं डॉन कीखोटे हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सांचो ने पादरी की तरफ देखकर आंख मारी, जैसे कह रहा हो, देखा, काम कर गया। पादरी ने इशारे से कहा, खामोश, अभी आगे भी बहुत कुछ है। डोरोथिया ने रोते रोते कहा, ए बहादुर शवालिये, मुझे अपने शहर तक ले चलो। वहां एक जालिम जादूगर ने सब कुछ तबाह कर दिया है। डॉन कीखोटे ने फौरन कहा, मैं तैयार हूं, अभी रवाना होते हैं। सांचो ने जल्दी से कहा, हुजूर, पहले जरा आराम और कुछ खाना। डॉन कीखोटे ने संजीदगी से कहा, शवालिये को आराम नहीं, फर्ज चाहिए। और यूं उसी जंगल में एक नई मुहिम का ऐलान हो गया। मुहिम जो दरअसल घर वापसी की चाल थी, मगर डॉन कीखोटे इसे अपनी किस्मत की फतह समझ रहा था। अगले ही दिन वो सब सफर पर निकल पड़े। डॉन कीखोटे आगे आगे था, जैसे वाकई किसी सल्तनत को बचाने जा रहा हो। डोरोथिया पीछे थी, मगर उसके चेहरे पर अब अदाकारी का गम कम और असल थकन ज्यादा थी। पादरी और हज्जाम खामोश थे, हर कदम सोच समझ कर रखते कि कहीं डॉन कीखोटे को शक न हो जाए। और सांचो दिल ही दिल में गिनती कर रहा था कि कब ये सफर खत्म हो और कब वो अपने बिस्तर को देखे। रास्ते में कभी डॉन कीखोटे दुश्मनों की बात करता, कभी जादूगरों की। पादरी जी जी कहकर बात बढ़ा देता, हज्जाम हंसी दबाता रहता। सांचो कभी हामी भरता, कभी आह भर देता। फिर उन्होंने एक और चाल सोची। पादरी ने कहा, अगर ये चलता रहा तो दोबारा कहीं लड़ पड़ेगा, इसे काबू में रखना होगा। चुनांचे रात के वक्त जब डॉन कीखोटे थक कर बैठा, उन्होंने उसे एक गाड़ी में बिठाया, ऐसी गाड़ी जो पिंजरे जैसी लगती थी। उन्होंने कहा, ये जादूगर की कैद है, मगर ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। डॉन कीखोटे ने हैरत से देखा, फिर संजीदगी से सर हिलाया। हाँ, मैं जानता था, दुश्मन जादूगर मुझे रोकना चाहता है। सांचो ने जल्दी से कहा, हुजूर, घबराएं नहीं, जैसे ही आपकी मुहर पूरी होगी, जादू टूट जाएगा। डॉन कीखोटे ने कहा, बिल्कुल, शुवालिया को कैद नहीं किया जा सकता, ये महज एक आजमाइश है। और यूं वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लोग जमा होने लगे, कोई हैरत से देखता, कोई हंसता, कोई अफसोस करता। मगर डॉन कीखोटे पिंजरे में बैठा भी खुद को शिकस्त खुर्दा नहीं समझ रहा था। वो समझ रहा था कि ये भी उसके कारनामों का हिस्सा है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो खबर आग की तरह फैल गई। लोग घरों से निकल आए, किसी के चेहरे पर हंसी थी, किसी के चेहरे पर हैरत और किसी की आंखों में अफसोस। देखो, डॉन कीखोटे वापस आ गया, ये आवाजें हवा में फैलती गईं। घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी। पादरी और हज्जाम ने सुकून का सांस लिया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। सांचो ने भी दिल में कहा, शुक्र है, कम से कम आज रात रोटी तो मिलेगी। डॉन कीखोटे को घर के अंदर ले जाया गया। कुछ दिन उसे आराम दिया गया, मरहम लगे और घर वालों ने दुआ की कि शायद अब ये जुनून ठंडा पड़ जाए। पादरी और हज्जाम भी मुतमईन थे कि कम से कम फिलहाल खतरा टल गया। मगर डॉन कीखोटे के अंदर कहानियां अभी जिंदा थीं। वो बिस्तर पर लेटा होता तो उसकी आंखें छत को नहीं देखती, वो मैदान देखती, किले देखती और दूर कहीं डोलसीनिया की आवाज़ें सुनने लगती। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाता, डोलसीनिया, मेरी डोलसीनिया। सांचो रोज़ाना आकर हाल पूछता। कभी वो सच्चे दिल से हमदर्दी करता, कभी दिल ही दिल में डरता कि कहीं ये फिर ना उठ खड़ा हो। और कभी वो अपने गधे को देखकर सोचता, अगर फिर निकले तो इस बार गवर्नरी वाकई मिलेगी या बस एक और पिटाई। पादरी और हज्जाम ने आपस में कहा, हमने उसे वापस तो ले आया, मगर उसके ख्वाबों को कैसे वापस भेजें। उनके लिए डॉन कीखोटे की दीवानगी बीमारी थी, मगर डॉन कीखोटे के लिए ये दीवानगी जिंदगी थी। फिर एक सुबह डॉन कीखोटे ने अचानक आंख खोली। उसने गहरी सांस ली और बहुत संजीदगी से कहा, सांचो, तैयारी करो। सांचो के हाथ से रोटी गिरने को हुई। हुजूर, फिर? डॉन कीखोटे ने आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहा, हाँ, फिर, क्योंकि शवालिये का सफर कभी खत्म नहीं होता।
और यूं एक बार फिर कहानी ने अपने आप को दोहराया, मगर इस बार दुनिया इन दोनों को पहले से ज्यादा जानती थी। अगली ही रात डॉन कीखोटे और सांचो फिर निकल पड़े। गांव सो रहा था, मगर डॉन कीखोटे के दिल में फिर वही जागती हुई दुनिया थी। कले, जंगें और दुल्सेनिया के नाम की कस्में। सांचो ने आहिस्ता से पूछा, हुजूर, इस बार वाकई जजीरा होगा ना? डॉन कीखोटे ने पुरएतमाद लहजे में कहा, सांचो, इस बार किस्मत खुद हमारे कदमों में आएगी। मगर इस बार एक फर्क था। रास्ते में उन्हें लोग मिलते तो चौंकते नहीं थे, पहचानते थे। कोई दूर से देखकर मुस्कुराता, कोई आकर सलाम करता, और कोई ऐसी निगाह से देखता जैसे वो किसी किस्से का किरदार देख रहा हो। सांचो ने हैरत से कहा, हुजूर, ये लोग हमें जानते कैसे हैं? डॉन कीखोटे ने गुरूर से नहीं, उलझन से कहा, शायद मेरी शोहरत फैल गई है। चंद मील आगे एक मुसाफिर मिला। उसने रुककर कहा, अरे आप तो वही हैं ना, डॉन कीखोटे? सांचो के मुंह से बेख्तियार निकला, हाँ यही हैं। मुसाफिर हंस पड़ा, मैंने आपकी कहानी पढ़ी है। आपकी हवा के चक्के, आपका खोद, सब कुछ किताब में है। डॉन कीखोटे एक लम्हे को साकित हो गया। किताब? मेरी कहानी किताब में? इसके चेहरे पे फख्र भी था और हैरत भी, जैसे किसी ने उसके ख्वाबों को कागज पर कैद कर दिया हो। सांचो ने फौरन पूछा, और मेरे बारे में क्या लिखा है? मुसाफिर हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम भी है सांचो पांजा और तुम्हारी बातें भी। सांचो के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे उसे आधी गवर्नरी अभी मिल गई हो। डॉन कीखोटे ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, तो दुनिया ने मेरी मुहिम्मात सुन ली हैं और फिर भी मैं जिंदा हूं और मेरा फर्ज अभी बाकी है। उसी वक्त दूर से एक शनासा आवाज आई, डॉन कीखोटे, जरा रुको। वो गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान था, सामसोन कारस का। उसने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपकी शोहरत दूर तक जा चुकी है। लोग आपकी नई मुहिम के मुंतजिर हैं। सांचो ने खुश होकर कहा, देखा हुजूर, लोग मुंतजिर हैं। डॉन कीखोटे की आंखों में फिर वही चमक जागी। अगर दुनिया मुंतजिर है तो डॉन कीखोटे कैसे रुक सकता है? मगर सामसोन के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें दोस्ती भी थी और कोई छुपा हुआ मंसूबा भी। सैमसन कारास्को ने मीठी बातों में कहा, हुजूर, अगर आप वाकई निकले हैं तो एक बात याद रखें, अब दुनिया आपको देख रही है। डॉन कीखोटे ने फख्र से कहा, दुनिया देखे या ना देखे, मेरा फर्ज बाकी है। सांचो ने फौरन पूछा, और मेरा जजीरा? दुनिया उसे भी देख रही है ना? सैमसन हंस पड़ा, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। वो चंद और साथ चले, फिर सैमसन ने रुखसत ली, मगर जाते जाते उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ सोच कर आया हो और कुछ सोच कर जा रहा हो। कुछ दिनों बाद डॉन कीखोटे ने कहा, सांचो, हमें दुल्सीनेनिया से मिलना है। सांचो के हाथ पांव फूल गए। उसने नजरें चुराईं। हुजूर, हाँ जरूर। उसके दिल में एक ही ख्याल था, अगर दुल्सीनेनिया सामने आ गई तो मैं क्या कहूंगा? सांचो ने जल्दी से एक तरकीब निकाली। रास्ते में उसे चंद देहाती औरतें नजर आईं, सादा लिबास, हाथ में काम का सामान। सांचो ने दूर से इशारा करके कहा, हुजूर, वो रही दुल्सीनेनिया। डॉन कीखोटे ने घोड़ा रोका, गौर से देखा और उसके चेहरे पर उलझन फैल गई। ये तो शहजादी नहीं लगती। सांचो ने फौरन कहा, हुजूर, जादू है। दुश्मन जादूगर ने दुल्सीनेनिया को आम शक्ल में बदल दिया है। डॉन कीखोटे के चेहरे पर दुख फैल गया। उसने आहिस्ता से कहा, अफसोस, मेरी दौलसिनिया, मेरी शहजादी। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी जैसे किसी ने उसके ख्वाब के ऊपर मट्टी डाल दी हो। सांचो ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई, जी हुजूर, जादू बहुत ताकतवर है, मगर आप इसे तोड़ देंगे। डॉन कीखोटे ने सर उठाया, आंखों में फिर अज़्म की चमक आई। हाँ, मैं ये जादू तोड़ कर रहूंगा। वो आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते, कुछ हंसकर सरगोशियां करते। सांचो को यूं लग रहा था जैसे अब हर कदम पर कोई उन्हें पहचानता है और हर नजर उनके पीछे कोई किस्सा छुपा रही है। कुछ ही दिनों बाद वो एक शानदार महल के करीब पहुंचे। दरवाजे पर नौकर कतार में खड़े थे। अंदर से कहकहों और साज की आवाजें आ रही थीं। सांचो ने आंखें फैला दी। हजूर, ये तो बहुत बड़ा घर है। डॉन कीखोटे ने संजीदगी से कहा, ये किला है और किलों में मजलूम भी होते हैं और जालिम भी। अंदर दाखिल होते ही ड्यूक और डचेस ने उन्हें बड़ी इज्जत से बुलाया।
उन्होंने डॉन की खोटे को ऐसे सलाम किया जैसे वाकई कोई अजीम फातेह आ गया हो। डॉन की खोटे का सीना फख्र से भर गया। सांचो ने दिल में कहा, ये इज्जत अच्छी है, बस खाना भी अच्छा हो। डचेस ने मुस्कुराकर कहा, हमने आपकी मुहिम्मात सुन रखी हैं, आप तो जमाने के सच्चे शवालिया हैं। डॉन की खोटे ने हाथ दिल पर रखकर कहा, हम सिर्फ फर्ज अदा करते हैं। फिर खाने की मेज सजी। सांचो की नजर रोटी और गोश्त पर थी और डॉन की खोटे की नजर इज्जत और मकसद पर। ड्यूक ने हंसते हुए पूछा, बताइए आपकी दोलसीनियां कैसी हैं? डॉन की खोटे ने आह भरी, उस पर जादू है, मगर मैं उसे तोड़ कर रहूंगा। डचेस ने मसनूई अफसोस से कहा, हाय, फिर तो आपको एक बहुत बड़ी आजमाइश दरकार होगी। उसी रात महल में चिराग रोशन थे और बातों में शरारत घुली हुई थी। ड्यूक और डचेस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, अब तमाशा शुरू। उन्होंने निहायत संजीदगी से ऐलान किया, हम आपकी मदद करेंगे। हम वो रास्ता जानते हैं जिससे दुल्सिनिया का जादू टूट सकता है। डॉन कीहोटे की आंखों में रोशनी भर गई। वाकई? डचेस ने कहा, हाँ, मगर इसके लिए एक अजीब सा इम्तिहान देना होगा। सांचो के कान खड़े हो गए। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, कौन सा इम्तिहान? मगर डॉन कीहोटे ने सीना तान कर कहा, जो भी हो, मैं तैयार हूं। ड्यूक ने तालियां बजाकर नौकरों को बुलाया। कमरे में पर्दे हिले और एक शख्स अंदर आया जिसने लंबी सी दाढ़ी लगाई हुई थी, कपड़ों पर चमक दमक और हाथ में एक बड़ा सा तोमार। वो गहरी आवाज में बोला, मैं अजीम जादूगर हूं और मैं तुम्हें बताने आया हूं कि दुल्सिनिया के जादू का तोड़ क्या है। सांचो ने आंखें सिकोड़कर देखा, जैसे कह रहा हो, ये जादूगर कम और अदाकार ज्यादा लगता है। मगर डॉन कीहोटे दम साधे खड़ा था। जादूगर ने तोमार खोला और कहा, एक ऐसी सवारी है जो हवा में उड़ सकती है। अगर तुम उस पर बैठकर आजमाइश पूरी करो तो दुल्सेनिया की किस्मत बदल जाएगी। डॉन कीहोटे ने फौरन कहा, हम तैयार हैं। सांचो का मुंह खुल गया। हुजूर, हवा में? डचेस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सांचो, तुम भी साथ जाओगे। सांचो के चेहरे से रंग उड़ गया। मैं भी? ड्यूक ने कहा, क्योंकि गवाह जरूरी है। सांचो ने दिल में कहा, गवाह तो ठीक है, मगर जिंदा गवाह? और फिर नौकरों ने एक अजीब सी लकड़ी की सवारी लाकर रख दी। ऐसी सवारी जिसे देखकर सांचो की टांगें कांपने लगी और डॉन कीहोटे के दिल में एक नई फतह की रोशनी जाग उठी। वो लकड़ी की सवारी बिल्कुल अजीब थी। न घोड़ा न गधा, बस लकड़ी का एक ढांचा, जैसे किसी ने मजाक में उसे उड़न खटोला बना दिया हो। जादूगर ने ऐलान किया, इसका नाम क्लेवेलिनियो है। तुम दोनों इस पर बैठो, आंखों पर पट्टियां बांधो और जब मैं कहूं तो रस्सी खींच देना। सांचो ने फौरन कहा, हुजूर, पट्टियां क्यों? जादूगर बोला, क्योंकि हवा का सफर आंखों से नहीं, किस्मत से होता है। सांचो ने दिल में कहा, और गिरने का सफर भी। डॉन कीहोटे ने शान से कहा, हम तैयार हैं। सांचो ने कांपती आवाज में कहा, मैं भी, बस थोड़ा कम तैयार हूं। उन्हें सवारी पर बिठाया गया, आंखों पर पट्टियां बंधी। डॉन कीहोटे ने सीना तान कर कहा, सांचो, डर मत, हम आसमानों की सैर करने जा रहे हैं। सांचो ने होंठ हिलाए, हुजूर, मुझे तो जमीन ही काफी थी। फिर हवा की आवाज आई। किसी ने पंखे झलने शुरू किए और ऐसा लगा जैसे तेज हवा चल रही हो। सांचो ने चीखकर कहा, या अल्लाह, हम उड़ रहे हैं। डॉन कीहोटे ने खुशी से कहा, हाँ, मैं महसूस कर रहा हूं, हम बुलंद हो रहे हैं। अगले लम्हे गर्मी सी महसूस हुई, जैसे आग का शोला करीब से गुजरा हो। सांचो घबरा गया, हुजूर, कहीं हम जल तो नहीं रहे? डॉन कीहोटे ने संजीदगी से कहा, ये आसमानी आग है, ये आजमाइश का हिस्सा है। महल के लोग दूर खड़े हंस रहे थे, मगर दोनों के लिए ये सब हकीकत थी। सांचो कांपता रहा, दुआएं पढ़ता रहा और दिल ही दिल में अपने गधे को याद करता रहा। और डॉन कीहोटे, वो खुद को फातेह समझ रहा था, जैसे वाकई आसमान को चीर कर गुजर रहा हो। फिर अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई। जादूगर चीखा, आजमाइश पूरी हो गई। पट्टियां खुलीं और दोनों ने देखा कि वो वहीं थे, जमीन पर, उसी कमरे में। सांचो ने हैरत से कहा, हुजूर, अगर हम वहीं थे तो? डॉन कीहोटे ने संजीदगी से जवाब दिया, सांचो,
ये जादू है, कुछ सफर नजर नहीं आते मगर दिल पर नक्श छोड़ जाते हैं। डचेस ने तालियां बजाईं। वाह क्या शानदार मुहिम, ड्यूक ने मसनूई संजीदगी से कहा। अब डुल्सिनिया के जादू में यकीनन दरार पड़ गई होगी। डॉन के खोटे ने एहतराम से सर झुकाया, जैसे उसने वाकई कोई अजीम कारनामा सरअंजाम दिया हो। सांचो ने दिल में कहा, जादू में दरार कम, मेरी हड्डियों में दरार ज्यादा पड़ गई है। इसी रात महल में एक और ऐलान हुआ। ड्यूक ने कहा, सांचो पांजा, हम तुम्हें तुम्हारा हक देने जा रहे हैं। सांचो चौंका, मेरा हक? डचेस मुस्कुराई, तुम्हें गवर्नरी मिलेगी। सांचो की आंखें चमक उठीं। गवर्नरी? वाकई? डॉन के खोटे ने फख्र से कहा, देखा सांचो, मैंने वादा पूरा कर दिया। सांचो के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर साथ ही खौफ भी। ये महल वाले इतनी आसानी से क्यों दे रहे हैं? अगले दिन सांचो को बड़े एहतमाम के साथ एक जगह ले जाया गया जिसे जजीरा कहा गया। हालांकि सांचो को पहले ही कदम पर लगा कि ये जजीरा कम और चाल ज्यादा है, मगर जब लोग उसे गवर्नर साहब कहकर सलाम करने लगे तो उसके दिल में खुशी की घंटी बजने लगी। उसे एक कुर्सी दी गई, कपड़े दिए गए और नौकरों ने आकर अदब से सर झुकाया। सांचो ने दिल में कहा, वाह ये तो वाकई हो गया। फिर फौरन ख्याल आया, मगर कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं। अब मुकदमे आने लगे। कोई जमीन का झगड़ा लेकर आया, कोई कर्ज का मामला, कोई दो आदमियों की लड़ाई। सांचो ने पहले गौर से सुना, फिर सादा मगर तेज बात कही। लोग हैरान रह गए कि ये देहाती आदमी बात की जड़ कैसे पकड़ लेता है। एक आदमी चालाकी से झूठ बोल रहा था। सांचो ने एक सवाल किया, फिर दूसरा, और तीसरे सवाल पर झूठ खुद ही गिर पड़ा। सांचो ने हंसते हुए कहा, सच को ज्यादा कमान नहीं खींचनी चाहिए, टूट जाता है। लोगों ने दाद दी और सांचो का सीना फूल गया। मगर शाम होते होते सांचो को एहसास होने लगा कि इंसाफ देना आसान है मगर आराम करना मुश्किल। जैसे ही वो खाने की तरफ हाथ बढ़ाता, कोई ना कोई नया मसला आ जाता। कोई दरवाजे पर चीखता, कोई फरियाद करता, कोई शिकायत लेकर आ जाता। सांचो थक कर कहता, भाई पहले मुझे रोटी तो खाने दो। फिर रात आई और रात के साथ गवर्नरी का दूसरा चेहरा। सांचो ने बिस्तर पर लेटकर सोचा, चलो आज सुकून मिलेगा। मगर अभी आंख बंद ही की थी कि अचानक शोर मच गया। किसी ने दरवाजा पीटा, किसी ने चीख मारी, जैसे किले पर हमला हो गया हो। सांचो घबराकर उठ बैठा, क्या हुआ क्या हुआ? नौकर दौड़ते आए, मगर उनके चेहरों पर संजीदगी कम और शरारत ज्यादा थी। एक बोला, गवर्नर साहब दुश्मन आ गया है। सांचो ने कांप कर कहा, दुश्मन? कौन सा दुश्मन? अचानक अंधेरे में किसी ने ढालें टकराईं, तलवारें बजीं और शोर बढ़ गया। सांचो ने कंबल पकड़कर खुद को छुपाने की कोशिश की। या अल्लाह, मैं तो जजीरे पर आया था, जंग पर नहीं। और बाहर दबी दबी हंसी की आवाजें थीं। सुबह हुई तो सांचो की आंखें सूजी हुई थीं। वो कुर्सी पर बैठा तो लोगों ने फिर सलाम किया, फिर मुकदमे लाए, फिर मसले। सांचो ने फैसला तो कर दिया, मगर अंदर से टूटने लगा। उसने दिल में सोचा, ये गवर्नरी नहीं, ये सजा है। उसी दिन एक नौकर बड़े अदब से आया और बोला, गवर्नर साहब, आज रात आपकी एक और आजमाइश है। सांचो ने थकी हुई आवाज में पूछा, और अगर मैं इनकार करूं? नौकर मुस्कुराया, यहां इनकार भी आजमाइश है। सांचो ने आहिस्ता से सर पकड़ लिया। उसके दिल में अब वही ख्याल वाज़ेह हो चुका था, मुझे अपना गांव चाहिए, अपना गधा चाहिए और अपनी सादा रोटी चाहिए। उसी रात फिर शोर हुआ, फिर ढाले बजी, फिर चीखें, फिर दौड़। सांचो ने आंखें बंद की और दिल में कहा, बस बहुत हो गया। सुबह होते ही सांचो कुर्सी के सामने खड़ा हुआ। नौकरों ने हस्बे मामूल अदब से कहा, हुक्म करें गवर्नर साहब। सांचो ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा हुक्म यह है कि मैं ये गवर्नरी छोड़ता हूं। लोग चौंक गए। कुछ ने समझा मजाक है, कुछ ने सोचा नाराजगी है। नौकर घबरा गए, जैसे खेल अचानक खत्म हो गया हो। सांचो ने कहा, मैंने इंसाफ करने की कोशिश की, मगर सुकून के बगैर अक्ल भी थक जाती है। फिर उसने अपना सादा सा सामान उठाया और चल पड़ा। रास्ते में उसने आसमान की तरफ देखा और बड़बड़ाया, गवर्नरी का मजा अपनी जगह, मगर अपने गधे के साथ चलना बेहतर है। जब वो वापस महल की तरफ आया तो ड्यूक और डचेस ने हैरानी से देखा। डचेस ने हंसते हुए कहा,
अरे गवर्नर साहब इतनी जल्दी वापस? सांचो ने थकी हुई मगर साफ आवाज में कहा। बीबी, गवर्नरी बड़ी चीज है मगर नींद उससे भी बड़ी है। और फिर वो जल्दी से अपने शवालिये को ढूंढने लगा। उसके दिल में अब ख्वाहिश कम और वफादारी ज्यादा थी। वो जान चुका था कि डॉन कीखोटे के साथ सफर खतरनाक है, मगर इसके बगैर कहानी भी अधूरी है। दूसरी तरफ डॉन कीखोटे महल की इज्जत में भी खुद को आजमाइश में समझता रहा। वो जादू और दुश्मनों की बात करता और महल वाले हंसी दबाते, मगर डॉन कीखोटे की नज़र में ये सब तकदीर का हिस्सा था। और जब सांचो वापस पहुंचा तो उसने बस इतना कहा, हुजूर, मैं वापस आ गया हूं। डॉन कीखोटे ने फख्र से कहा, देखा सांचो, तकदीर ने तुम्हें लौटा दिया। सांचो ने दिल में सोचा, तकदीर नहीं हुजूर, नींद ने लौटा दिया है। मगर जबान से सिर्फ यही निकला, जी हुजूर, अब आगे क्या हुक्म है? डॉन कीखोटे ने सीना तान कर कहा, आगे आगे वही मुहिम। सांचो ने आहिस्ता से आह भरी, मगर फिर भी साथ चल पड़ा, क्योंकि अब वो सिर्फ वादे के पीछे नहीं था, वो अपने मालिक के पीछे था। कुछ ही अरसे बाद ड्यूक और डचेस का महल पीछे रह गया। रास्ता खुला था, हवा साफ, मगर किस्मत की आंखें फिर भी उन्हीं पर थीं। डॉन कीखोटे हर मोड़ पर दुश्मन तलाश करता और सांचो हर मोड़ पर रोटी। इसी सफर में उन्हें खबर मिली कि एक जगह एक बहादुर शवालिया लोगों को ललकार रहा है। डॉन कीखोटे की आंखों में चमक आ गई। सांचो, ये जरूर कोई बड़ा मुकाबला है। शवालिया अपने नाम को आजमाइश से रोशन करता है। सांचो ने एहतियात से कहा, हुजूर, दुआ करें ये मुकाबला हवा के चक्के न निकलें। जब वो उस जगह पहुंचे तो वाकई एक शवालिया सा मंजर था। एक आदमी ज़िरा बख्तर में था, घोड़े पर बैठा और लोगों के बीच बड़ा रौब डाल रहा था। उसने डॉन कीखोटे को देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या आप ही वो हैं जिनकी कहानियों ने सबको हंसाया है? सांचो को वो मुस्कुराहट कुछ जानी पहचानी लगी, मगर डॉन कीखोटे ने उसे चैलेंज समझा। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं डॉन कीखोटे हूं, मैं किसी की हंसी से नहीं डरता। वो शवालिया बोला, तो फिर शर्त सुन लो, अगर मैं जीत गया तो तुम घर वापस जाओगे और अपनी मुहिम्मात छोड़ दोगे। सांचो के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने फौरन कहा, हजूर, सोच लें। मगर डॉन कीखोटे ने एक लम्हा भी जाया न किया। मंजूर। मैदान बन गया। लोग जमा होने लगे, हवा में गर्द उड़ रही थी और सूरज जैसे किसी फैसले का गवाह बनने आया हो। सांचो ने गधे की रस्सी मजबूत पकड़ी, दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस बार खैर हो। डॉन कीखोटे ने नेजा सीधा किया, रोसिनांते को एड़ लगाई और दिल में दौलसिनिया का नाम लिया। सामने वाले शवालिये ने भी घोड़ा दौड़ाया, मगर उसकी चाल में अजीब सा एतमाद था। फिर एक ही लम्हे में टकराव हुआ। लोगों ने चीख मारी, नेज़े की आवाज आई और डॉन कीखोटे का जिस्म झटके से पीछे को गया। वो जमीन पर गिरा। इस बार धूल के साथ गुरूर भी गिरा। सांचो दौड़ता हुआ आया, हुजूर, उठें। डॉन कीखोटे ने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ न दिया। सांचो के हाथ कांप रहे थे और आंखों में पानी आ गया। सामने वाला शवालिये आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसने डॉन कीखोटे की तरफ झुककर कहा, शर्त याद है? डॉन कीखोटे ने दर्द में भी सर हिलाया। हाँ, शर्त याद है। शवालिये बोला, तो फिर वादा करो कि तुम घर वापस जाओगे और अब मुहिम्मात का दरवाजा बंद कर दोगे। सांचो की सांस रुक गई। डॉन कीखोटे की आंखों में एक लम्हे को वही पुरानी आग चमकी, मगर फिर वो आग जैसे थक गई। उसने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं। ये लफ्ज ऐसे गिरे जैसे किसी ने तलवार नहीं, ख्वाब तोड़ दिया हो। सांचो ने सर झुका लिया। लोगों की आवाजें दूर होती गईं और डॉन कीखोटे जमीन पर पड़ा। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही किस्से के अंजाम को सुन रहा हो। इस शिकस्त के बाद सफर का रंग बदल गया।
डॉन कीखोटे अब कम बोलता था। रास्ते में जहां पहले वो देव देखता था, अब वो बस हवा महसूस करता था। जहां पहले किला देखता था, अब वो दीवार देखता था। सांचो साथ साथ चलता रहा। वो कभी कुछ कहता, फिर खुद ही रुक जाता। कभी उसे लगता कि वो अपने मालिक को दिलासा दे, और कभी लगता कि शायद खामोशी ही बेहतर है। कुछ दिनों बाद वो अपने गांव के करीब पहुंचे। गांव की वही गलियां, वही दरवाजे, मगर अब डॉन कीखोटे के कदमों में वो जोश नहीं था। वो घर पहुंचा तो घर वालों ने सुख का सांस लिया, मगर दिल में एक उदासी भी थी, जैसे कोई तूफान थम तो गया हो मगर निशान छोड़ गया हो। डॉन कीखोटे बिस्तर पर लेटा तो देर तक खामोश रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांस भारी होने लगी। उसने सांचो की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, सांचो, मैं थक गया हूं। सांचो की आंखें भर आईं। हुजूर, आराम करें, जब ठीक हो जाएंगे तो हम। डॉन कीखोटे ने बात पूरी ना होने दी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं सांचो, अब मैं ख्वाबों से वापस आ रहा हूं। पादरी और हजाम भी आए। उन्होंने उसे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि आज डॉन कीखोटे की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, एक और ही रोशनी थी, पुरसुकून और साफ। डॉन कीखोटे ने आहिस्ता से कहा, मैं डॉन कीखोटे नहीं, मैं अलोंसो की खानू हूं। ये कहकर उसने जैसे अपनी ही कहानी का पर्दा गिरा दिया। कमरे में खामोशी छा गई। सांचो ने सर झुका लिया, और बाहर गांव की हवा वैसे ही चल रही थी जैसे दुनिया को कोई फर्क ना पड़ा हो। मगर एक ख्वाब, एक किस्सा और एक दीवानगी आज अपने अंजाम के करीब थी। इसके बाद दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए। अलोंसो के खानों की आवाज़ में अब वो जुनून नहीं था, बस थकन थी और एक अजीब सा सुकून भी। वो कभी माजी की बात करता, कभी खामोश रहता, और कभी अपनी ही हंसी पर चौंक जाता, जैसे उसे याद आता हो कि वो कभी ख्वाबों में कितना दूर निकल गया था। सांचो रोज उसके पास बैठता, कभी उम्मीद से कहता, हुजूर जरा सा ठीक हो जाएं फिर हम, और फिर खुद ही खामोश हो जाता, क्योंकि उसे मालूम था अब हम का मतलब बदल चुका है। पादरी ने नरमी से कहा, तुम वापस आ गए हो अलोंसो। हज्जाम ने सर झुकाकर कहा, खुदा तुम्हें सुकून दे। घर वालों की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में शुक्र भी कि कम से कम वो घर लौट आया था। अलोंसो के खानों ने सांचो की तरफ देखा और धीरे से कहा, सांचो, मैंने तुम्हें बहुत थकाया। सांचो की आवाज भर्रा गई, हुजूर, आपने मुझे हंसाया भी और रुलाया भी। अलोंसो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद यही जिंदगी है। फिर एक रात जब घर में चिराग मध्यम थे और हवा खामोश, अलोंसो के खानों ने आहिस्ता से आंखें बंद की। कमरे में कोई शोर न हुआ, बस एक लंबी सांस और फिर सुकून। सांचो ने उसके हाथ को थामा और सर झुका लिया, और यूं डॉन कीखोटे की कहानी खत्म हुई। एक ऐसा आदमी जो दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखता था, बल्कि जैसा वो चाहता था वैसा देखता था। कुछ लोग उसे पागल कहेंगे, कुछ लोग उसे ख्वाब देखने वाला कहेंगे, मगर सच ये है कि उसने हमें ये सिखाया कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका यकीन होता है। और कहीं दूर किसी खुश्क से रास्ते पर हवा आज भी चलती है, जैसे रोसेनांते के कदमों की धमक याद रखती हो, और जैसे सांचो की आहें अब भी किसी कहानी के बीच में खड़ी हों। कहानी खत्म, मगर ख्वाबों का सफर नहीं। अगर आपको डॉन कीखोटे और सांचो की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल में रह जाती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।